हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे, हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे जो कौटिल्य ने लिखी है। Before that, we have UPSC CSE subscription price hike reminder, and the price will increase after 24th October. So we have like 8,000 to 9,000, from 20,000 to 22,500, from 36,000 to 40,500, from 44,000 to 49,500, and from 64,000 to 72,000. So the price hike date has been extended due to a multiple requests made by everyone. So get your subscription and get 10% discount by using this simple code. An Academy Aspire is providing you with the All India free mock test for all civil servant aspirants under UPSC CSE of Prelims 2021 of Paper 1 JS, and you will get opportunity also to get good scholarships and exciting prizes for top 50 rank holders. And this will be conducted on every 10th and 25th of every month. And the test will be conducted on 25th October at 10 a.m. sharp. An Academy full-length mains mock test paper has been set up by JSM for Ethics for UPSC CSE, and we have free live special class on 25th October at 9 a.m. sharp. You can enroll for the class now. So we have special batches for UPSC CSE Mains 2020. We have advanced batch course for UPSC CSE Mains 2020 bilingual that starts from 19 October. We have advanced batch course for UPSC CSE Main 2020 that starts from 14th October, and we have advanced batch course for UPSC CSE Mains for 2020 in English that starts from 14 October. So you can enroll now for these batch courses. We have 4 CSE complete batch preparation courses that are starting from 19 to 26 October 2020. The first batch is in bilingual, in which the medium of instruction is in Hindi, English both. The second is in Hindi completely, and the third is in English. And the fourth batch is a mission for 2022 of 2-year batch course that is for UPSC CSE. This one subscription has like unlimited benefits, like you can learn from your home, you have unlimited access to all courses, top educators of Indian and platform, full syllabus coverage, regular doubt clearing session, live test series, study material will be given to you in the form of PDF format, answer writing session, and this will be done under a mentor and guidance. This is also a one-stop solution for your complete UPSC CSE preparation, because you have structured batches with top educators, batches in Hindi, English and bilingual, late night as well as 2-year batches, full 100 syllabus coverage. Then we have vast range of optional, prelims test series, main test series. We have also dedicated doubt clearing classes also. And then we have like daily current practice also, and answer and answer writing practice, our performance analysis, and along with that we'll prepare you for the interview also. So this is going to really help you everyone in the long term. So if you subscribe now, you will get 10% off. You just simply need to apply this code and then can proceed for the payment. We have K20 daily current affair test series that is completely free in this, and we have for daily 7:30 p.m. for 20 questions for 20 minutes, and it will be for 40 marks along with your test analysis. If you really like our channel, then please like, subscribe and join on YouTube, Telegram and Facebook. So let's start with our chapter. As we all know, the Arthashastra was transcribed around the 14th century BC by the Prime Minister of the Great Mauryan Empire, that is known as Kautilya, and he is also known as the Chanakya or the Vishnugupta. So as we all know, the Arthashastra is like one of the most persuasive and comprehensive treatises in political science in the Indian Vedic civilization, and it was like often regarded as the essence of the ancient Vedic wisdom in politics, economics, and Arthashastra has been like a very noteworthy significance in the modern times also. और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंक्विजिटिवनेस है, रेनेसेंस है, जो थॉट्स की ये थ्योरीज का है, और जितने भी सारे लाइक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं अराउंड द ग्लोब, उन पे काफ़ी ज़्यादा इनने फोकस करा है. और जो अर्थशास्त्र है वो एक सिर्फ इंडियन डिस्कोर्स के बारे में बताता है, जो स्टेट क्राफ्ट है, कैसी इकोनॉमी पॉलिसीज होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और ये जो बुक है वो संस्कृत में लिखी गई है. अब जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली एक साइंस है, विच मीन्स शास्त्र, विच मीन्स अ साइंस ऑफ लाइक वेल्थ है, अर्थ है, पॉलिटी है, जिसे हम अर्थ कहते हैं. अब इसमें हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये साइंस है,
और ये 8 है लाइक पॉलिटिक्स की, डिप्लोमेसी की। और इस ट्रीटीज के इस क्या कहते हैं, ट्रीटीज के थ्रू हम ये देख सकते हैं इसकी जो बुक है वो लाइक 16 इसके डिवाइडेड है, वो 16 बुक्स में है जो एक्चुअली डील करती है वर्चुअली लाइक एवरी टॉपिक जो कंसर्न, जैसे स्टेट कैसे रन करेंगे, हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, लॉ, डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी, और बाकी सारे जो टॉपिक्स है उसमें कवर हो जाते हैं। अब ये जो बुक है ये एक्चुअली एक मास्टर वर्क है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स, स्टेट का, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज, लीडरशिप स्किल्स, लीगल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, सिविल रूल्स, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। अब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देखे वो कंपोज हुआ था 3rd से 2nd सेंचुरी BC। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो बेसिकली एक वर्क है जो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट पे है, और इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज बताए जो फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं किंग पे। अब अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ वी कैन सी दैट दिस इज लाइक अ वेरी स्मूथ फंक्शनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो द किंग हैज लाइक acquainted in favors of 4 Vedas and 4 sciences, that is Ank, Mikshaki, Shiv, Vart, Vrata and Dandaniti. So we can see that Kautilya and administrative and judicial structure was basically based on the hierarchical nature, and as for the like impartiality he emphasized on the principles of equity and the immediance also. So as for the law and order we can say he believed that he was a very like imperial command and he enforced a lot of sanctions in the state. Now let's talk about the basic ideas that was included in the Arthashastra. So we can see there were a lot of debates on these theories and the principle how we need to govern a state. So it was just not an account of like a moral administration, but the title Arthashastra basically means the science of material gain or the science of politics. So इसमें यहाँ पे कोई doubt नहीं है कि उनके ends क्या हैं। अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्चुअली प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पे बेस्ड है। और जो कौटिल्य ने असर्ट करा था कि जो रूलर अपने यूज करना चाहिए मीन्स को, उसे अपने गोल्स को वो कोई भी मीन्स वो अटेन कर सकता है, गोल्स और एक्शन जो उसका एक्चुअली रिक्वायर्ड है अपने मॉरल सैंक्शन के लिए। अब जो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी वो डिबेटेड हुई है, जो काफ़ी सारे मोस्ट प्रैक्टिकल काइंड में है। अब जो अर्थशास्त्र है वो एक्चुअली एक रैशनल एथिक है जिसे हम सर्टेनली मॉरल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट हुआ है अफेयर्स का जैसे स्टेट का है, और ये एम्फोसाइज करता है एक सिस्टमाइजेशन ऑफ लॉ है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है जो एक्चुअली थ्रू आउट द एम्पायर है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक आइडियाज है कौटिल्य का वो अर्थशास्त्र पे बेस्ड है, कि कौटिल्य के जो इकोनॉमिक ट्रीटीज हैं अर्थशास्त्र में वो बेसिकली एक आइडिया ऑफ वर्क है, और ये एक परफेक्ट बैलेंस बताता है कि एक स्टेट मैनेजमेंट और पीपल के वेलफेयर को देख के हम कैसे बैलेंस एक मेंटेन कर सकते हैं अपने किंगडम में या फिर अपने स्टेट में। और ये जो है वो 2500 ईयर्स बिफोर इनने बुक बनाई थी। अब हम आते हैं ये जो अर्थशास्त्र है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के बाद बात करते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड है जिसमें वो बताते हैं कि जो इंडिया है वो मेकिंग एक फर्स्ट वेलफेयर स्टेट के बारे में जाना जाता है इस टाइम पे, क्योंकि उनके काफ़ी सारे जो उनके स्कीम्स थे, पॉलिसीज थे, वो सब वेलफेयर पे बेस्ड थे जो सब स्फीयर्स में थे। अब उनने ये भी स्टेट करा है कि उनकी जो हैप्पीनेस ऑफ ए सब्जेक्ट है वो बेसिकली जो होती है वो हैप्पीनेस ऑफ किंग होती है। अब इसमें जो वेलफेयर है कि वो उनका वेलफेयर अब किंग का वेलफेयर बन जाता है। तो वो कहता है he shall not be considered as good as only because that pleases him, but he treats as a beneficial to him, so whatever he pleases his subjects. So he also like strongly supported that the protection होना चाहिए livelihood का, weaker section का, consumer protection होना चाहिए और welfare भी होना चाहिए, even prisoners को भी उनका welfare देना चाहिए। अब जो यहाँ पे इनने किंग की हमने धर्म की बात करी है वो बेसिकली बहुत जस्ट होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, ताकि वो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर सके अपने खुद के लोगों को। वो खुद इतना बोल्ड होना चाहिए ताकि उनका एटीट्यूड ऑफ उनका फादर दिखे टुवर्ड्स अस चिल्ड्रन। अब जो कौटिल्य ने बहुत क्लियरली डिमार्केट करा है द मॉडल रूलर है एज वन who is like the ever like active in promoting like the welfare of people and who like endears himself by enriching the public and doing well to them. अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 ends है लाइक ह्यूमन लाइफ का।
तो वर्च्यू है, वेल्थ है और इंजॉयमेंट है। अब कौटिल्य जो बताता है, वो एलोकेट करता है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस वो एलोकेट करता है ह्यूमन लाइफ को, वो है वेल्थ। बिकॉज यहाँ पे वो अवेयर है कि ये जो बाकी सब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है, जो रिलीजन और प्रिंसिपल नॉर्म है, वो एक्चुअली प्रिजर्विंग के लिए है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के लिए है। तो यहाँ पे वो बेसिकली परमिट करता है कि जो किंग को है उसको डिटरमाइन करना चाहिए अपने आप के लिए, और क्या वो लॉज, कैसे लॉज वो सैंक्शन करेगा। हमें देखते हैं कि ऑल दोस वेदास में एक्सेप्ट कराए काफी सारे सोर्सेज ऑफ धर्म, बट वो एक्चुअली स्टैट्यूट करता है कि लॉज कौन से होने चाहिए, वो एक्चुअली वेल मैच होने चाहिए जो सीक्रेट टेक्स्ट में लिखा है। बिकॉज अगर लॉज अनमैच नहीं क्या कहते हैं, अगर लॉज अनमैच्ड होंगे तो लोग उनका विरोध करेंगे और उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इतने सारे लाइक इंपॉर्टेंस दिए कि उसने जो अस्क्राइब करा है, जैसे रोल ऑफ किंग है, कौटिल्य की बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच रही है, और वो देना चाहता है इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटेंस ऑफ डोमिनेंस का है, जो एक्चुअली काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब हम देखते हैं जो हमारी इंडियन थ्योरी में हम देखते हैं जो इंडिपेंडेंस है, बेसिकली वो लाइक 7 एलिमेंट्स कवर करती है, जिसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को हम इसके नाम से जाना भी जाता है कि ये सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट है। अब इसमें सबसे पहला आता है किंग के बारे में। किंग होगा जो लॉज एंड ऑर्डर्स बनाएगा, अपने राज्य को देखेगा, उसके मिनिस्टर्स होंगे जो उनके लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, और उनके जितनी भी पॉलिसीज है वो कैसे उनको एफिशिएंटली वो मैनेज करना है। और जो पॉपुलस है, बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज किंग जब तक कोई पॉपुलेशन होगी तब तक वो उन पर रूल नहीं कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फोर्ट। फोर्ट होता है, फोर्ट इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फोर्ट है वो एक सिक्योरिटी देता है। अगर कोई राज्य ने दूसरे राज्य में आपका आक्रमण करा या फिर आपको कोई वॉर फाइट करा, तो आप अपनी जो पॉपुलेशन को या फिर जो प्रजा को है वहां से प्रोटेक्ट कर सकते हो फोर्ट में। तो फोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को हमें कॉन्कर करने के लिए। उसके बाद आता है फिफ्थ ट्रेजरी। हमें पता है कि मनी का काफी इंपॉर्टेंस है, कि कोई भी पॉलिसी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन और विदाउट मनी पॉसिबल नहीं है। अब जो सिक्स यहाँ पे जो पार्ट है वो है आर्मी। अब हमें पता है कि आर्मी के बिना कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्मी आपको कोर्ट्स में चाहिए होती है, कॉमन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए चाहिए होती है, वॉरफेयर के लिए चाहिए होती है, तो आर्मी इज ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है एलआई। एलआई में होता है कि हमारे अलायंसेस किससे अच्छे हैं, तो उनके संबंध अच्छे हैं तो वो हमारी किसी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, हम भी उन्हें हेल्प करते हैं। अब जब कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई बड़ा किंगडम या फिर कोई ऐसे आप पे वो अटैक करता है, तो आप एलाई फॉर्म करके, ताकि आपको रिसोर्सेज मिलती रहे, और आपके अलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट में। अब ये जो थ्योरी है वो पूरी बेस्ड है, हमारी जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो काफी ज्यादा इंटेग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। इससे वो वो एक्चुअली शो करते हैं कि जो नेसेसरी कंडीशंस है वो बहुत एफिशिएंट है कि हमारा स्टेट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। अब हम आते हैं गुड गवर्नेंस में। तो इस पूरी बुक में गुड गवर्नेंस का बहुत कुछ बताया कि जैसे गवर्नेंस है वो जनरली बेसिकली इनकॉर्पोरेट करती है कि हमारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होने चाहिए ऑफ अ कंट्री जो गवर्न होती है, जिसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। अब जो अर्थशास्त्र है उसने बहुत क्लियरली स्टेट करा है कि गुड गवर्नेंस बेसिकली आता है पीस से, ऑर्डर से, और ये अकम्प्लिश भी हो सकता है प्रॉपर पार्टनरशिप से, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बताए कम्युनिटी में। अब यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर जो उसने एज अ लीडर बताया कि जो लीडर एक्चुअली काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी चीजें उसकी कम्युनिटी में होती है। और इंडियन सोसाइटी में जो लीडर होता है, किंग होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्योंकि वो अपने नेशन को लीड करता है, और इस वजह से वो डिस्प्ले करता है काफी सारे वर्च्यूज। अब जो अर्थशास्त्र है वो भी प्रोवाइड करती है काफी सारी क्वालिटीज जो डिफाइन करती है गुड लीडर को, और काफी ज्यादा स्ट्रेस करती है ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्च्यू पे। अब कौटिल्य भी हमने देखा है कि उसकी बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज है, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस को, जैसे टैक्सेशन है, डिप्लोमेसी, ट्रेड, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में बहुत कुछ बताता है, और हमें सीखने के लिए मिलता है जो एक्चुअली प्रेजेंट डे भी प्रेजेंट डे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें वो बताता है कि उनके काफी अच्छी नॉलेज है मेडिसिन और एस्ट्रोलॉजी में भी, और उसने डिस्कोर्स बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे मैकियावेली है, प्रिंस है, वैसे ही हम अर्थशास्त्र को हम मैकियावेली के टेक्स्ट से कंपेयर करते हैं। अब जो कौटिल्य है उनने एक्चुअली लाइक एक्सप्लेन करा है कि कैसे स्टेट इकोनॉमी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए,
और मिनिस्टर्स को हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, वॉर कंडक्टेड कैसे होंगे, और कैसे टैक्सेशन जो होगा वो ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो उसने काफी ज्यादा एम्फेसाइज करा है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक नेटवर्क ऑफ डिटेक्टिव्स में, और जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, और जो फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स होता है किंग के लिए। तो ये फोकस करता है कि कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट अगर आ रहा है या फिर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम हो गई तो हमें पहले ये किंग को पता चल जाता है। अब जो अर्थशास्त्र है वो यहाँ पे डील भी करता है जितने भी ऑफिस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। अब चैप्टर 4 में उसने एलैबोरेट करा है जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पार्शियल होने की जरूरत है, क्योंकि उन पे सारा केस डिसाइड होता है, तो उन्हें बहुत न्यूट्रल रहने की जरूरत होती है जो किंग और सब्जेक्ट से बीच में होता है। अब यहाँ पे ये भी इंडिकेट करते हैं कि उन्हें इम्पार्शियल होने की जरूरत है और एवरी ट्रायल ऑफ केसेस में वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इंजॉय कर पाए। और जो ट्रू जस्टिस है वो बेसिकली ये है कि वो जो गिल्टी है उन्हें पनिश कर सके और जो इनोसेंट है उसे रिलीज कर सके। अब जो हमारा आइडियल जस्टिस सिस्टम है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है सबके लिए जो जज होते हैं सिमिलरली वे में। अब अनदर की एलिमेंट हम देखते हैं जो उनके गुड गवर्नेंस में होता है वो है एग्जिस्टिंग होता है, अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है जिसमें वो इन्हांस करते हैं नेशन को, और जो अर्थशास्त्र होता है जिसमें कौटिल्य ऑफर करते हैं कॉन्क्रीट प्रपोजल्स है जिसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अप्रोप्रिएटली कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब बच्चों को एजुकेट होना चाहिए। अब अर्थशास्त्र में ने बहुत लाइक एक्सप्लिसिटली उन्हें बताया है कि एक बहुत ही स्टडी कनेक्शन है बिटवीन गुड गवर्नेंस और इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। अब कौटिल्य का अर्थ ये इलेबोरेट करता है रेलेवेंस की जो एंड ऑफ इकोनॉमी गवर्नेंस है व्हाइल द पॉलिटिकल गवर्नेंस इज द मीन। इसका ये मतलब है कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस बेसिकली इफेक्ट लाएगा ऑन इकोनॉमी एस्पेक्ट ऑफ अ नेशन। अर्थशास्त्र ने ये भी ऑफर करा है कि काफी सारे गाइडलाइंस बताए हैं जिसमें जो प्रॉपर मैनेजमेंट इकोनॉमी है कंट्री के लिए, और जो रूलर है उन्हें ये भी पता होना चाहिए वो कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करे, जैसे उनके जो मॉनेटरी फंड्स है, और ये एक्चुअली ये भी देखते हैं कि कैसे ये कंट्रीब्यूट कर सके डिफरेंट जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी की। अब जो कौटिल्य ने बहुत असर्ट करा है कि उन्हें गारंटी मिलनी चाहिए गुड गवर्नेंस की, और वहाँ पे सूटेबिलिटी गाइड करना चाहिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें जो रूलर सरेंडर कर सके, अपने लाइक्स कर सके, डिसलाइक्स हो उसके इंटरेस्ट में सारे सब्जेक्ट्स हो, और ये जो पर्सनल रनिंग है वो जो गवर्नमेंट की वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके एडिशनली कि जो कौटिल्य है उन्हें हाईलाइट करा है कि जो सिटीजन फ्रेंडली होते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी भी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस होगी जिसमें उनके कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स भी है, और जो ऑफिशियल्स वो जो क्या कहते हैं उनकी क्वालिटीज भी होनी चाहिए ओन करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, इंटेलेक्ट, एनर्जी, फूड, मतलब गुड मॉरल कंडक्ट होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस, वो केपेबल होने चाहिए कि वो क्विक डिसीजंस ले सके टफ टाइमिंग्स में। अब हम आते हैं कौटिल्य का लॉ और जस्टिस, बिकॉज कौटिल्य अपहेल्ड करता है काफी सारे लाइक इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू बेसिक लाइक टू मेंटेन ऑर्डर। ही आल्सो डिस्क्राइब्स ऑर्डर ब्रॉडली इंक्लूड द both social as well as in the sense of punishing all the criminal activity। अब जो अर्थशास्त्र है वो इनकॉर्पोरेट करता है कि जितने भी सिविल लॉज है और क्रिमिनल लॉ है, और कौटिल्य एट्रीब्यूट करते हैं कि काफी ज्यादा ने इंपॉर्टेंस दिए धर्म को। अब धर्म अकॉर्डिंग टू हिम है कि वो अल्टीमेट सोर्स है ऑल लॉ की जो है धर्म, और उसने वो ये सिंपली बताया जो नेम ऑफ धर्म है वो बेसिकली एक सेंस ऑफ ऑनर है, ड्यूटी है, प्राइड है, ह्यूमन डिग्निटी है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनलाइटमेंट है, लॉयल्टी के लिए। और इसमें उन्होंने क्वाइट लाइक अंडरस्टैंडेबल उन्हें जजमेंट दिया अर्थशास्त्र में, जो वो धर्माश्रय बोलते हैं जिसको अपहोल्डर ऑफ धर्म है, और उनको एक लॉन्ग लिस्ट जैसे एवरी जैसे जो भी इतने आर्यस फॉलो करते हैं वो है सर्वधर्म धर्म करते हैं, जिसमें उन्हें लाइक हमें बताया जाती है वर्ण भी और उनके आश्रम जो किंग फॉलो करता है अपना राज धर्म, तो उनको वो एक्चुअली सस्टेन करना है जितने भी वर्ण है उनके राज्य में। अब कौटिल्य ने फोकस करा था ड्यूटीज ऑफ किंग है कैसे मेंटेन करते लॉ और ऑर्डर सोसाइटी में। उन्हें अर्थशास्त्र में लिखा है कि किंग जो है वो एक्चुअली गार्जियन ऑफ राइट होता है जो कंडक्ट करता है वर्ल्ड में, और 4 वर्नास होते हैं और 4 आश्रम्स होते हैं। अब उन्हें नेक्ट करा है और उन्हें प्रोमलगेट करा है लॉज जो ट्रेडिशनली कोड्स ऑफ कंडक्ट पे पेरिश होते हैं, और जो किंग में लुक्ड अपॉन हुए एम्बॉयडमेंट ऑफ वर्च्यू, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्शंस है जहाँ पे किंग जो एक्चुअली अगेंस्ट गया है प्रीडोमिनेंट नोशन ऑफ धर्म के, और जो एसोसिएशंस है जो इंडिविजुअल सिटीजन्स के वो एक्चुअली
फ्री थे ताकि वो उन्हें क्वेश्चन कर सके। उन्हें ये भी रिकॉल करा कि जितना भी टाइम रहा है जिसमें धर्म अलोन एक गाइडिंग स्टार नहीं रहा है जितने भी किंग के लिए, तो उसने रादर देन उसने एवरी इंडिविजुअल को देखा है और उन्हें फॉलो करा है जो धर्म है, और उसमें वो एक्शन की लाइफ ऑफ डिग्निटी होती है क्योंकि उनका जो सोशल ऑर्डर होता है वो प्रिवेल करता है सोसाइटी में। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अब झा एंड झा ने इंडिकेट करा था कि जो चाणक्य है उनकी एक सुप्रीम इंपॉर्टेंस रही है इन द मेंटेनेंस ऑफ रिच ट्रेजरी, और इन्हें बहुत पॉजिटिवली ये अफेक्टेड हुए कि इंटायर जो एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इनका जो फोकस था वो एक्चुअली गुड फिस्कल मैनेजमेंट पे था, और उनके काफ़ी सारे वेज आए डेवलपमेंट के और जो सेक्टर्स रहे हैं इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन ऑल्सो से दैट पब्लिक रेवेन्यू लाइक डज नॉट जस्ट एग्जिस्ट ऑन डिजायर्स of king but as a like a fund to be the utilized to augment so the wealth of nation. So he confessed that the taxation was one of the main source of revenue. So the power of taxing of the state was like boundless and but the taxation should not be like excessive जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स है वो एक्चुअली टैक्सेशन दे ही नहीं पाए कि आपने इतना ज्यादा टैक्स उन पे लगाया। तो सपोर्ट करते हैं कि टैक्स जो बेस होता है इंक्रीज में कि वो इंक्रीज होता है नॉट द टैक्स रेट। उन्होंने कमेंट करा कि एक्सेसिव टैक्स जो है वो बर्डन होगा लोगों पे, इसलिए कौटिल्य ने स्टेट करा है कि जो किंग है उसे टैक्सेस कलेक्ट करना चाहिए जैसे हनी भी जैसे इनफ सस्टेन करना चाहिए बट नॉट मच टू डिस्ट्रॉय देम। अब हम आते हैं कि कौटिल्य ने बहुत ही इनडायरेक्टली सजेस्ट करा जो लीनियर इनकम टैक्स है, उसने हाईलाइट करा कि फेयरनेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिस्कल फेडरलिज्म होना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ हैवी टैक्सेशन होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए टैक्स इन कंप्लायंस, सब्सिडीज होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन हो। और इसके साथ साथ उन्होंने एडवोकेट करा कि एक बहुत ही लिमिटिंग द टैक्सेशन पावर होनी चाहिए स्टेट की कि हैविंग लो रेट्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं ताकि ग्रेजुअली वो इंक्रीज कर सके टैक्सेशन। अब कौटिल्य का जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है वो इन्वॉल्व करता है जो एलिमेंट्स ऑफ सैक्रिफाइस जो टैक्स पेयर करते हैं और उन्हें बेनिफिट्स क्या मिलने चाहिए और कैसे हमें ये रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जो इनकम है, जो टैक्स इंसेंटिव्स है और कैसे ये डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो उसने सजेस्ट करा कि टैक्स हॉलिडे इंसेंटिव होना चाहिए जिसमें कि anyone basically brings a new land under the cultivation he should be relieved from agriculture tax for at least 2 years। उसने ये भी एडवोकेट करा कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें उन्होंने आर्ग्यू करा है कि बहुत ही यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले होना चाहिए गवर्नमेंट का। अब ये कॉन्वर्जेशन जो है टैक्सेशन की वो आइडिया भी देती है, आइडिया ऑफ 3 प्रिंसिपल्स से इंक्लूड करती है जो टैक्सेशन ऑफ पावर जो लिमिटेड होती है और ये ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए और टैक्सेशन जो इंक्रीज होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होती है। यहाँ पे रेकमेंड करते एक सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन हो और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू का इस वे में होता है कि वो बिल्ड अप करे एक परमानेंट रेवेन्यू यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। और इन्हें भी स्टेट करे जो टैक्स है बेसिकली बेस शुड नॉट जस्ट इंक्रीज एंड दे शुड नॉट इंक्रीज द टैक्स रेट। अब हम आते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है टैक्सेशन से उसको हम बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज में हम स्पेंड करें पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो उन्हें आर्ग्यू करा कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम जो हम एक्सपेंडिचर कर सकते हो, नेशनल डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल स्टोर, ग्रेनरीज, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल जेम्स, स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स और जितने भी सारे जो लेफ्ट हो गए जो हमारे ट्रेजरी में है। अब जो अर्थशास्त्र उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है कि जो लॉ है वो एक्चुअली viewed was not just viewed just as a code of prohibition but it was limited to the corrective justice of law codes। So उसने रेंज बताया कि जो वाइड एथिक्स पे बेस्ड है इंस्टीट्यूशन है, क्रिएशन ऑफ लॉ होगा और जो ट्रेडिशंस है, कस्टम है वो बेसिकली सैंक्शन पे रेस्ट होंगे। अब जितने भी फिलोसफी है सोसाइटी का वो फॉर्म होगा जिससे लॉज जो है ब्लेंडेड होगा, रिलीजन में मॉरलिटी होगी और पब्लिक ओपिनियन होगा और उसका जो है बहुत सटल ऑपरेशन जो सब्जेक्ट होता है सोसाइटी के विल पे। यहाँ पे जो रोल है सोसाइटी का बेसिकली है कि वो वहाँ पे हमारे लिए जस्टिस लाए सोसाइटी में और एक रिमार्केबल टास्क हमें मिलता है कि वो हम कैरिड होते आते हैं किंग के लिए और उसके जितने भी असिस्टेंट होते हैं। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन को इंक्लूड करना चाहते हैं अर्थशास्त्र पे। तो बेसिकली अर्थशास्त्र बहुत क्लियरली समराइज करता है, एक्सेप्शनल टेक्स्ट है जो सारे इंडियन लिटरेचर में, बिकॉज ये टोटल एब्सेंस है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बेकार की रीजनिंग नहीं है और कभी कोई ब्लंट सपोर्ट नहीं है किसी भी पॉलिटिक्स के लिए और कोई स्टेट के लिए। बट यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कंटिन्यू करा स्टडी करके क्लियर कट आर्ग्यूमेंट्स दे और फॉर्मल स्टाइल है जो 12th सेंचुरी
तक था। अब जो अर्थशास्त्र है वो प्रोवाइड करता है ब्रॉड कवरेज है जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इरिगेशन, फॉरेस्ट्री, फोर्टिफिकेशन, वेट्स, मेजरमेंट, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स, ट्रेड, कमोडिटीज, एग्रीकल्चर, लैंड यूज, प्रॉपर्टी लॉज, money and coinage, interest rates, loan market, tariff, taxes and government expenditure as well as treasury। अब इसने ये अर्थशास्त्र स्पेशली इसलिए लिखी है क्योंकि ये एक डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो ये इंटरप्रेटेड होता है एक ब्रॉड सेंस में। और ये एक समवेयर हमें पता है कि 321 से लेके और 326 में पीसी में लिखी गई है। अब जो कौटिल्य था वो एक ब्राह्मण भी था, तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि उसने गवर्निंग रोल बताया कि फॉर्मेशन और फंक्शनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर कैसे होना चाहिए। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसकी जो लीडरशिप में है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, स्टेबिलिटी के साथ इसने कॉन्कर भी करा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा एम्पायर, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनेटरी मैनेजमेंट भी। यहाँ के इनके अकम्पलिशमेंट से ये डोमेन था कि जो स्कॉलरशिप वो है एक सर्टनली क्रेडिटेबल था। अब कौटिल्य का हम देखते हैं कि उसने डिलीवर कर गए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्शन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल ऑफ प्रिंस, किंग, मिनिस्टर्स और जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स है। तो यहाँ पे जो स्टेट ने जो मेंशन करा है वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कौटिल्य प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट लाइक कमेंट्री एज टू हाउ वन शुड बी लाइक इफेक्टिवली अंडरटेकन। सो उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जितने भी डिफेंस के जो स्टेट लिमिट्स हैं और प्रोटेक्शन ऑफ फोर्स कैसे और उसमें मैनर में ना अटैक कैसे करना बाय द राइवल मस्ट आल्सो बी लाइक कंट्रोल।